Shakespearean book, page number 5. Exercise section. Salan Buchstabieren. Salan means numbers. Buchstabieren means to spell. To spell numbers. Ergänzen Sie die Lücken. Lücken means gaps. Complete the gaps. जैसे कि यहाँ पे 63, सेकंड है 100, देन 60, 70. फिफ्थ क्या होगा? टेल मी. थाउजेंड। देन आपसे 7 क्या है? Sitzen. जीप सिंह. ठीक है. देन 8. वॉल्फ। 12. Next exercise. Third. Salan lesen. Salan means number and lesen means to read. To read numbers. Schreiben means write. See the Antworten in Schalen. So write the answers in numbers. Antworten means answers. So हमें इसमें numbers लिखना है. ठीक है. So V is the course number from Deutsch course. So what is the course number for the Deutsch course? Deutsch course means German course. Course number means course number. Then their course hat the number 100 times. So the course has the number 900 times. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 101. ठीक है. इसी तरीके से बाकी करनी है. जैसे सेकंड में कैनन मीन कैनन जी द फोरवाल फॉन मानहाई. कैनन मीन्स टू नो. फोरवाल मीन्स country code or area code. Von Mannheim, von means of. So do you know the country code of Mannheim? आंसर में लिखा हुआ है या. यस. Das ist 0621. क्या है? टेल मी. 0, 7, Hmm. 2, 1. 0721. Then 3. Wie heißt deine neue Adresse? Adresse means address. So what is your new address? Neue means new. Then Schillerstraße. Straße means street जो कि एड्रेस है. ठीक है. एंड आर्क und Dreißig. क्या आएगा? सर 38. ऊपर वाले में नल जेक्स वाई आइंस है तो 0621 आएगा ना? Oh, sorry. देन इसमें क्या आएगा थर्ड वाले में? 38. Wir müssten zahlen bitte. Müssten means would like. We would like to pay, please. Moment. Das macht
जैक्सिन ऑयरो जीप से, so that makes जैक्सिन ऑयरो जीप से क्या आएगा? 16.70. Then fifth, B is the telephone number for Maria. What is the telephone number of Maria? 74, 36, 38. 74, 36 and 36 and 62. 82. hmm. Class. Tal and Finden. Finden means to find. Point number. Wo is solved. Where is 12? Wo means where. Okay. Markieren means to mark. Zidi Felder. Felder means fields. To mark the fields, we get as weiter means what happens next. Plus ist plus. Minus ist minus. Mal ist multiply. Dosh is divided. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस को कहते हैं प्लस, माइनस को कहते हैं मिनूस, एंड माल को कहते हैं मल्टीप्लाई. डोश मीन्स डिवाइड. तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इज सॉल्व. वेयर इज टॉयल. तो हमने इस टेबल में टॉयल ढूंढना है, साथ ही साथ में जिसमें भी टॉयल मिलेगा उस फील्ड को हमने मार्क करना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है 6 + 6 इज इक्वल टू 12. इसको हमने मार्क कर दिया. देन Vier und 24 durch divided by 2 is equal to 12. ठीक है, हम इसको मार्क कर देंगे जिसमें 12 होगा. Then 20 minus 9 means 9 is equal to 11. 1 plus 10 11. 8 multiplied by 3 is equal to 24. 7 means 7 multiply 6. Which that means 6 is equal to 42. 9 plus 3 is equal to 12. Dry multiplied by 5 equal to 15. Dreißig minus 2 11. Then 8 plus 3 is equal to 21. 10 plus 3 is equal to 13. Then 17 minus 5 is equal to solve. 3 multiplied by 4 is equal to solve. 10 divided by 2. 5. Then same plus 4. Piercing 8 y is equal to 16. Else plus y dressing and 8 und 40 durch 4 12 30 minus 18 12 20 divided by 5 and equal to 4. Okay. 1 plus 13 14 14 19
Then we are saying तीन mal toy 20 solve it. 10 plus soy solve 7 plus 5 12. ओके, तो अब जितने भी 12 हैं उनको हमने मार्क करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये रहा, देन ओके। तो इस एक्सरसाइज में कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अजीत, ट्विंकल, No, sir. व्योटर लर्नर। व्योटर means words, learner means to learn. To learn words. Welch's word past tense. Past means to fit. Which word does not fit? This means not. ये आपका हाउस ऑफ गाबा मीन्स होमवर्क। इसमें करना क्या है, जो पिछली एक्सरसाइज थी कल हमने करी थी बुक में, लास्ट एक्सरसाइज वही है सेम। जैसे कि व्योटर, व्योटर मीन्स वर्ड्स, वर्ड्स। श्राइबन मीन्स टू राइट, लेजन मीन्स टू रीड, योरन मीन्स टू लिसन, स्पीडन मीन्स टू प्ले। इसका आंसर क्या होगा, टेल मी। सर एक बार रिपीट करना, करना क्या है इसमें? आपने फाइंड करना है कि विच वर्ड डज नॉट फिट, कौन सा वर्ड किस मतलब फिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे व्योटर है, व्योटर के साथ क्या फिट नहीं होगा? ट्राइबन मीन्स टू राइट, जो वर्ड है उसको हम लिख सकते हैं। देन लेजन ओके। कर सकते हैं, योरन वर्ड को हम सुन सकते हैं, स्पीलन देन प्ले, वर्ड के साथ हम खेल ये नहीं हाँ, खेल नहीं सकते, स्पील लेना आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस करना है, ठीक है। ओके, क्लियर, समझ ओके। में आ गया क्या करना है? यस सर। होमवर्क कहिए। ठीक है सर। 2 मिनट से ज्यादा टाइम मिलेगा। क्रूज, वोट, रेटसल। तो क्रूज मीन्स क्रॉस, vote means word, Rätsel means puzzle. Ergänzen Sie die Sätze, complete the sentences und schreiben Sie die Wörter and write the words in das Rätsel, in the puzzle. Wie heißt das Lösungswort? Lösungswort means solution word. So what is the solution word? ये पजल दी हुई है, जो भी वर्ड निकलेगा, मतलब जो भी पजल में हम वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पर सेंटेंसेस में, वो इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, साथ ही साथ में एक यूजिंग वर्ड निकलेगा, मीन्स लास्ट में एक सॉल्यूशन वर्ड निकलेगा, ठीक है। तो पहले में लिखा हुआ है वाज म्यूस्टर टू ड्रिंक काफे, तो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? कॉफी। एंड सेकंड, इश डैश बाय Siemens, इश arbeiter by Siemens, arbeiter means to work, arbeiten वर्ब है जिसकी मीनिंग है टू वर्क। So I work
एट, बाय की मीनिंग एट, और ज़मेंस क्या है, कंपनी नेम, ठीक है। सो आई वर्क एट ज़मेंस। थर्ड, हियर दैट काफी बेटर। तो यहाँ पे बेटर कहता है कि हियर द काफी प्लीज, देन आप कहते हैं थैंक यू, डंक। देन फियर minus soy is 4 minus 2 क्या आएगा? y 4 minus 2, तो 2 आता है, so soy. Then fifth, dash common सी out China, from China, क्या आएगा यहाँ? इस जी W फ्लैग मोहर है। ये एश जी किसने बोला? मैंने सॉरी मतलब हरमीत, हरमीत। यस हरमित ओके, तो हरमीत ये नहीं आएगा। इस क्यों, इस जी क्यों आएगा? सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पे इश आप हम्म लगा सपोज, तो यहाँ पे ई भी तो होना चाहिए, ई एन लगा ई हुआ हाँ है ना? हाँ ई ये एन सही लगा हुआ लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आउट लिखा हुआ है ना, फ्रॉम। हम्म हम्म तो वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम चाइना। द सुजामन मीन्स टुगेदर, ऑर्डर, और यहाँ पे क्या है? टुगेदर और सेपरेटली, है ना? सेपरेटली को जर्मन में क्या कहते हैं? जेंट्रेंस गेटरेंट, ठीक है। सुजामन, ऑर्डर, गेटरेंट, टुगेदर और सेपरेटली। देन डैश टाग मार गया, हालो यूलिया, सेवंथ में क्या आएगा? गुड गुडन टाग मार। ए कॉम्प टू डैश स्पानियन, स्पानियन मीन्स स्पेन। हाउ, फ्रॉम। वी इज द टेलीफोन डैश फोन आना। न्यूमर What is the telephone number of Anna? So number 10. Hello, mein dash ist Tom. कैट से आमो So mein Name ist Tom. Is दिया हुआ है, ठीक है। Then 11. Ish dash Hisham. इशबिन Ish, ठीक है। अब यही हम जैसे सेकंड में Arbeiter, then Danke, Zwei, woher, getrennt, putten, aus, Nummer, Nama, and last will, ठीक है। अब इसमें हम अपना losing fourth देखेंगे, ठीक है। losing fourth means solution word. तो सॉल्यूशन वर्ड निकल के आया है राडियर गुम्मी, राडियर गुम्मी, which means eraser. राडियर गुम्मी means eraser. ओके, सो ये एक्सरसाइज में कोई डाउट?
कोई ऐसा सेंटेंस जो समझ में ना आया हो? नो सर। ओके, नो सर। सेवंथ एक्सरसाइज जिसमें लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनोमन। सो पर्सनल प्रोनोमन क्या होता है, कोई बताएगा? पर्सनल प्रोनोमन की टेबल किसी को याद है? आर्टिकल रिप्लेस करते हैं, मतलब केस और जेंडर के अकॉर्डिंग। नो, टेबल क्या है बस बता दो। अजीत, पर्सनल प्रोनोमन की टेबल। ट्विंकल, हाँ अजीत ट्राई करो। सर कल होमवर्क दिया था ना, जैसे एक होमवर्क दिया था देन? नहीं कल हम किया था ना एक्सरसाइज वो और ये वाला लेडी करता है, दो कॉन्वर्सेशन होता है जो। नहीं वो नहीं, पर्सनल प्रोनोमन जो हमने सेकंड क्लास में किया था, सेकंड आई थिंक सेकंड या थर्ड में, ठीक है, ग्रामर टॉपिक पर्सनल प्रोनोमन। मतलब पढ़ाई के अलावा हाँ सब कुछ हो रहा है। वो इश दो वगैरह वाले इश दो एर्जियस। हाँ, क्या थी बता। हाँ, मतलब वो वाले यहाँ पे ऐड करने हाँ, तो पर्सनल प्रोनोमन इश में क्या दो थी? एर्जियस। इश, डू, एरजी, वियर, ईयर, जीजी। या जीजी। अब याद आया? हम्म, अजीत एंड हरमीत। यस सर। ठीक है, तो इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनोमन। मैं यही पूछ रहा था। तो ये एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। आप क्या करना है, इन काफे मींस इन द कैफे, hallo das sind Stefan und Annika. So these are Stefan und Annika. Hallo, ich bin Farida. Hello, I am Farida. Woher kommt dash? यहाँ पे क्या आएगा, ये बताएगा हरमीत। सर यहाँ पे आएगा, वे कौन तू। अजीत, वेयर कम्स, कॉमन की फिर आएगा सर, कंजुगेशन देख रहे हो? फिर ईयर, करेक्ट। तो यहाँ पे टी लगा हुआ है। आपने हरमीत दू बोला, दू के साथ अगर एस टी सर लगा, डू वाले में भी तो एक में आता है ना टी। एस टी आता है। ये मैंने मुझे लिखा इसमें हुआ। चेंज होता है, एक में कुछ चेंज भी होता है, इसमें डू के साथ टी लगता है। दू के साथ एस टी लगता है, ओके। और ओनली टी तब लगेगा जब एस, डबल एस, एसेट और जेड दिया हो, लेकिन इसमें नहीं दिया, राइट? हम्म। तो ईयर। देन यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट, कॉमन आउट स्वेडन, कम फ्रॉम स्वेडन। आंसर में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, वो है कॉम्ट ईयर, वेयर आर यू बोथ फ्रॉम फ्रॉम। देन आंसर क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या आएगा? बियर। वियर। वियर क्यों आया? क्योंकि जो पूछा जा रहा है प्लूरल में पूछा जा रहा है, जो ईयर है वो इनफॉर्मल का प्लूरल है, तो आंसर भी आप प्लूरल में दोगे, इसलिए यहाँ पर वियर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके,
तो ये एक्सरसाइज जो बाकी की आपकी हाउस ऑफ कार्ब है, आपने ये करनी है। और नीचे ये लिखा हुआ है एम डॉश कोर्स मीन्स इन द जर्मन कोर्स, देन ये नीचे वाली एक्सरसाइज जिसमें पर्सोनाल प्रोनाउन फिलोगे। ओके, इसी तरीके से करना। क्लास समझ में आ गया? हाँ सर। Yes. ओके, देन eighth exercise. Fragen und Antworten üben. Fragen means questions. And Antworten answers. Üben means to practice. To practice question and answer. Ergänzen Sie die Fragewörter. To complete the question word. Schreiben Sie die Antworten. Then write the answers. ठीक है, पहले हम अपना क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर्स के लिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन वर्ड के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए हुए। ठीक है, वो हमने अपने माइंड से करना है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ था वाज स्टूडियट रोबोट, मीन्स व्हाट इज रोबोट स्टडिंग। ठीक है, देन सेकंड यहाँ पे आएगा क्वेश्चन वर्ड जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, देन फिंडेट मिलेना फिलिपोवा वीन। वीन क्या है? वीना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी। ठीक है, फिंडेट मीन्स फाइंड। तो यहाँ पे आएगा वी। वी फिंडेट मिलेना फिलिपोवा वीन। हाउ डज मिलेना फिलिपोवा फाइंड वीना? ठीक है, देन थर्ड डैश arbeitet Andrea Fiedler। वो arbeitet Andrea Fiedler, which means where does Andrea Fiedler work? Arbeitet means to work. Then fourth, kommt Zemgyol, क्या है? कोई बता सकता है फोर्थ वाले में? ट्राई करो, गलती होगी तो कोई बात नहीं। वोहर। हाँ जी, वो है कॉम्ट जेंगे। तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो के लिए हम यूज करते हैं वोलन वर्ब। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कॉम्ट यूज हुई। ठीक है, वो है कॉम्ट। देन डैश हाइस डू अजीत। ट्राई करो, अजीत। अजीत, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. फिफ्थ वाले में क्या आएगा? ट्राई करो, गलती निकलेगी तो कुछ नहीं हो रहा, कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पर किसी को भी। R or C? यहाँ पे डब्ल्यू फ्रैग आएगा, मतलब कि जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है वो। डब्ल्यू फ्रैग वो होता है क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा जो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। यहाँ पे वाज आएगा, वाज हाइज डू, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, देन सिक्स्थ क्लाउडिया और पीटर, जो कि प्लूरल है, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे ईयर आ गया। ठीक है, जिसकी मीनिंग है यू बोथ एंड यू ऑल।
Was was drink here, what are you drinking? ठीक है, अब यहाँ हमने आंसर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, आंसर्स लिखने हैं और किसकी हेल्प लेनी है यहाँ पर, ये ऑप्शंस की, ठीक है। जैसे फर्स्ट में पूछा गया था वाज स्टूडेंट रोबोट, व्हाट इज रोबोट स्टडिंग, आंसर में लिखा हुआ है एर स्टूडेंट बियोलॉजी, ही इज स्टडिंग बायोलॉजी, ठीक है। ओके, देन वी फिंडेड मिलेना फिलिपोवा वीन, तो मिलेना फिलिपोवा फेमिनिन है, मतलब फीमेल का नेम है या फिर मेल का नेम? फीमेल। फीमेल। female. मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एर ऑर्डर जी? जी, तो यहाँ पे ये जी सब्जेक्ट हो गया। देन अब हमारी वर्ब आई, तो ये सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज हुई है? सेकंड Finded. फिंडेड। ओके, देन वीन क्या है? सिटी, दे स्टार्ट, City. Stud. The stud. देन फंटास्टिक, फंटास्टिक मीन्स फैंटास्टिक, The stud. उसके बाद सर कोई वो नहीं लगेगा क्या सीधा मतलब कोई जिसको हम कहते हैं आर्टिकल? आर्टिकल साथ में नो, और फंटास्टिक का आर्टिकल ही नहीं है, एडवर्ब है वो, नाउन थोड़ी ना, नाउन के आर्टिकल होते हैं, जैसे तो- सिटी नाउन है, ये तो ये इसमें सीधा ऐसे लिख देंगे दी स्टड फंटास्टिक जी फिंडेड द स्टार फंटास्टिक है, क्योंकि आर्टिकल जिसका लिखा जाता है जो नाउन होती है, और फंटास्टिक नाउन नहीं है, ठीक है, एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं, सॉरी, एडजेक्टिव। देन थर्ड, थर्ड में नेम यूज हुआ है आंद्रिया फिल्डर, अगेन मेल है या फीमेल? फीमेल तो जी कौन सी वर्ब यूज हुई है? आर्बाइट आर्बाइटेट। आर्बाइट देन यहाँ पे पूछा गया वो मीन्स वेयर, कहाँ पे काम करते हैं, तो ऑप्शंस में से जी देखिए, आर्बाइटेड बाय सीमेंस बाय जिमेंस, एट जिमेंस, जो कि कंपनी का नेम है, ठीक है। वो है कौन? जेमग्यूल। जेमग्यूल कौन है, मेल या फीमेल? मेल सो एर। देन वर्ब कौन सी आएगी? एर कॉम्प्ट बाकी स्टूडेंट्स आप भी ट्राई करो। देन aus तुर्की aus देर तुर्की ओके, देन वाज, सॉरी यहाँ पे मैंने वाज नहीं लिखना था, वी लिखना, वी हाइस्ट, ओके। ट्विंकल ट्राई करो। heiße Julia. देन अजीत लास्ट वाला, क्लाउडिया और पीटर वाज थिंक हियर, तो यहाँ पे ईयर यूज होगा, जब प्लूरल है सो वियर, यस, आगे वर्ब रंगन, देन मिल्क कॉफी, मिल्क कॉफी, मिल्क कॉफी। मीन्स मिल्क कॉफी, ठीक है। ओके, तो इस एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट? टेल मी। नो सर No, sir.
ओके, देन नेक्स्ट होमवर्क है आपका कंजुगेशन, कंजुगात्सियन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपने कंजुगेशन कंप्लीट करना है। Schreiben Sie die Verben auf einer Karte. Auf einer Karte means on a card. So write the verbs on a card. Manchmal gibt es zwei Möglichkeiten. Manchmal means sometimes. Es gibt means. So gibt es means there are zwei, two. Möglichkeiten means possibilities. So there are sometimes two possibilities. ठीक है। कार्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे इसकी एंडिंग है ई, देन डू ST, RSD, T, उसके बाद ईयर, T, वियर, ENGZ, ईयर। ओके, सो बेस्ट दिया हुआ है, तो ये दो वाले कार्ड में आएगा बेस्ट, कॉमी, इश कॉमी। ओके, देन प्रिंट किस में आएगा, किस कार्ड में आएगा? ईयर। ओके, देन RSD में भी तो आता है, RSD। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने होमवर्क में करना है। समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। The next exercise, verben üben. Üben means practice. Ergänzen Sie die Sätze, complete the sentences. तो यहाँ पर जो आपकी जो ये वर्ब दी हुई है, ठीक है, ये ऑप्शंस में वर्ब दी हुई है, बस यहाँ पर ये कंजुगेट होकर नहीं दी हुई, जैसे जाइन है ना, कॉमन, स्टूडियरन, आर्बाइटन, लेबन, लर्न। तो यहाँ पे जाइन मीन्स टू बी, जो कि कंजुगेट होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कॉमन मीन्स टू कम, स्टूडियरन टू स्टडी, आर्बाइटन टू वर्क, लेबन टू लिव, लर्नन मीन्स टू लर्न, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इश बिन मारिया, अब ये बिन कैसे आया, जाइन कंजुगेट हुई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इश, तो इश बिन मारिया, आई मारिया, इश komme aus Deutschland। अब कॉमन वर्ब कंजुगेट हुई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई के, ठीक है, तो आई एम कम फ्रॉम जर्मनी, इश डैश seit 4 Semestern Philosophy, 4 Semester means 4 semester, seit means since। तो सेमेस्टर क्या है? Ich bin Student. Ich bin, Ich bin Student. नो, सेमेस्टर स्टडी है। स्टडी के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? स्टडी के लिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, स्टूडियरन, स्टूडेंट। ये लिखा हुआ है। स्टूडियरन। अब ये कंजुगेट हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्या आएगा? ई आएगा। ई आएगा। Ich studiere seit 4 Semestern Philosophie, ठीक है, इस तरीके से आपने करना। देन mein Name डैश Utebauer, क्या आएगा यहाँ पर? my name डैश Utebauer, इस्ट। हाँ जी। तो यहाँ पे जाइन वर्ब कंजुगेट हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपने होमवर्क को करना। नाउ क्लास, समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। ओके, अजीत, हरमीत, यस सर।
तो आप इनको लिख लिया करो बुक में, ठीक है, कि ये होमवर्क है, ठीक है, मेंशन कर लिया करो, ओके, जैसे भूलोगे नहीं। Okay, next exercise 11, trigonometric help. Z sub happened. Next page पे Z sub happened means connect sentences. Happened means to connect. Z sub means sentence. Was passt zusammen. What fits together. Verbinden Sie und schreiben Sie die Sätze. Connect and write the sentences. पहले हमने इनको कनेक्ट करना है। तो Peter arbeitet, जैसे Peter arbeitet in München. Peter arbeitet in München. Then बाय Siemens. by the name. और क्या हो सकता है? An the university. At the university. Okay, so day. Okay, then second, year count. हरमीत ट्राई करो। Year count. ये comp with Petra the party Okay. और ये comp ये comp aus China. चाइना नहीं शीना, प्रोनाउंसिएशन शीना होगा। शीना Meaning शीना ठीक है? शीना सही था सर दोनों। हाँ दोनों। Then third, जिसमें से do studious, क्या कहते हैं अजीत? set swine semester ठीक है, है? biology. और एक और कौन सा बोला? Set sein semester biology. ठीक है, biology नहीं biology. Biology. Seit zwei Semestern biology. ठीक है, और कौन सा हो सकता है? एक तो ये हो गया, और कौन सी पॉसिबिलिटीज है? इन्हीं में से। A. Do studious in München. In München. एक और कौन सा हो सकता है? पढ़ाई और कहाँ पर होती है? Aus-China. Aus China, from China, no. और अच्छे से देखो गहराई में, पढ़ाई कहाँ पर होती है? An der Universität. An der University means at the university. They. Okay. So Peter arbeitet in München.
And Peter arbeitet bei Siemens. Peter arbeitet an der University. Ihr kommt aus China und ihr kommt mit Petra zur Party. Then du studierst in München. Du studierst an der Universität. Wenn du studierst seit 2 Semestern Biologie. इसमें कोई डाउट? टेल मी. No, sir. Others? No, sir. Next exercise, Kommunikation means communication. Wer sagt was? Who says what? Ordnen Sie die Sätze den Fotos zu. Zuordnen, which means to match, जो कि separable verb है. Die Sätze, sentences, then photos. So match the sentences to the photos. Okay. Then B में लिखा हुआ है ordnen Sie die Sätze und schreiben Sie die Dialog in Heft. And arrange the sentences and write the dialogue in the notebook. Heft means notebook. ओके. सो यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी हुई हैं. एक ये आ जो कि कस्टमर की है और देन बे जो कि वेटर की है. ठीक है. अब यहाँ पे दोनों के डायलॉग्स होंगे. जैसे वेटर क्या कहता है और कस्टमर क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, आपस में. ठीक है, एक दूसरे में. तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ज़ाग्ट वाज, हु सेज व्हाट, वो पता करना है हमने. उसके बाद ऑर्डनन जी दी ज़ेक्सा देन फोटोज, देन साथ ही साथ में मैच द सेंटेंसेस टू द फोटोज. ठीक है. तो सेंटेंसेस को हमने मैच करना है फोटोज के साथ. सो जो आ है वो कस्टमर है और बे है वो वेटर की है. ठीक है. सो वियर म्यूस्टन सालन, वी वुड लाइक टू पे. तो इसमें आ कस्टमर ने बोला गया है. ठीक है. देन गुटन टाग, गुड डे, वाज म्यूस्टन जी ड्रिंकर, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक. B, sir. हाँ जी, बी. ठीक है. देन also iced tea und ein Glas Wein. Also means well. Well, iced tea and a glass wine. ठीक है. Wine जो पीने वाली. ठीक है. Then इसमें क्या आएगा? आ और बे. आ बे. ठीक है. इसमें देखेंगे क्यों आया है. ठीक है, अभी समझ में आएगा. अभी स्टार्टिंग में ए ही लगेगा लेकिन आंसर बे है. Zusammen bitte. Together B. A. आ Then ich nehme ein Glas Wein und was trinkst du? Nehme means to take. Und was trinkst du and what are you drinking? A और बे. आ तो यहाँ पे जो मेल है वो कह रहा है कि ich nehme ein Glas Wein, मैं एक ग्लास वाइन लूंगा. और देन जो अपनी फीमेल फ्रेंड से पूछा है कि उन was trinkst du and what are you drinking, तुम क्या पियोगे. Then das macht 6,20 €. B. बे Zusammen oder getrennt, together or separately. B. बे Wiedersehen, see you again. B. हाँ. B. Iced tea,
बे हाँ. Then danke, auf Wiedersehen. Thank you. Goodbye. बे B. Then Rex eures Finnisch bitte. B. बे Bitte. हाँ आप जैसे यहाँ पे ये आ क्यों, आप पैसे दे रहे हो बेटा, देन आप कह रहे हो कि प्लीज टेक इट, इस तरीके से, ठीक है. ओके. अब इसमें लिखा हुआ है ऑर्डिनरी जेट्स, बे वाले पार्ट में लिखा हुआ है ऑर्डिनरी जेट्स. अब हमें यहाँ पे सेंटेंसेस अरेंज करना है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस बोला गया है वेटर के द्वारा, गुडन टाग वाज न्यूस्टन से ड्रिंक, ठीक है. गुड डे, व्हाट आर यू, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, ठीक है. देन सेकंड क्या आएगा? Ich nehme ein Glas Wein und was machst du trinken? अब ये नेक्स्ट ट्राई करेंगे अजीत. देन थर्ड क्या होगा? Second. Also iced tea und ein Glas Wein. नो, ये वाला आइसटी होगा जो नीचे लिखा हुआ है. पहला वहां पे पूछा गया है कि उन्ट वास ड्रिंक्स टू, वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा है, तो वो कहते हैं कि आइस टी, ठंडी चाय, Okay. ठीक है. देन ट्विंकल. also iced tea und ein Glas Wein. तो ये फोर्थ है. ऑल्सो नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे आल्सो, also ठीक है. ये फोर्थ है. फोर्थ कैसे हुआ? सपोज वेटर ने कहा कि आप क्या पियोगे, देन क्या लोगे, ठीक है, व्हाट एवर जो भी. देन कस्टमर्स ने कहा कि हम ये लेंगे, ग्लास वाइन लेंगे, और फिर उसने पूछा अपने फ्रेंड से कि तुम क्या लोगी, देन वो कहती है कि आइस टी लूंगी. देन अब वेटर कहता है, अब जो अपनी लिस्ट में लिख रहा है वो, ठीक है, नोटबुक में लिस्ट में लिख रहा है कि आल्सो वेल आइस टी और 9 ग्लास वाइन, जो कि वो ऑर्डर कर दिया उन्होंने ऑलरेडी, ठीक है. जिससे वो याद रहे तो वो अंदर जाके कह सके कि हाँ इन कस्टमर का ये ऑर्डर है. समझ गए? देन फिर yes हरमीत. das macht 26 Euro. उसके पहले क्या आएगा? डायरेक्ट पेमेंट की बात नहीं हुई यहाँ पे, बाकी इसके पहले एक और सेंटेंस बनाया हुआ है. फिफ्थ Wiedersehen. सालन. देन उन्होंने सब हो गया उनका फिनिश. देन कस्टमर्स कह रहे हैं कि वी वुड लाइक टू पे, हम पेमेंट करना चाहते हैं. ओके. देन अजीत. Zusammen order getrennt. ओके गुड. सिक्स सुजामन उधर गेटन. वेटर कहता है कि साथ में करोगे या फिर अलग अलग. ट्विंकल. zusammen bitte. सेवन, साथ में, टुगेदर प्लीज. देन हरमीत. Das macht 26 Euro. तो वेटर कहता है कि दैट मेक्स 6 euro 20 cents, ठीक. देन अजीत. Wiedersehen. इसके पहले पेमेंट उसने मांगा, कितने हो गए, देन फिर आप बिना पेमेंट ही जाओगे. 650 Euro. ओके. 9. Bitte. तो यहाँ पे 30 cents टिप दी गई हुई है, ठीक है. Twinkle. देन उसके बाद 10. Wiedersehen. नो डांका आउट विडरजेन, है ना, क्योंकि आपने पैसे दिए. देन वेटर कहेगा थैंक यू, धन्यवाद. 10th. देन कस्टमर्स कह रहे हैं सी यू अगेन. कस्टमर का आएगा फिर बाद में. ओके. ये समझ में आया? Yes sir. Yes, sir.
हरमीत आप बताओ यस सर। वेस्टर्न का आर्टिकल की दे दो नॉर्मल आर्टिकल। देर दस दीदी। दी दास दस दीदी आराम से। मस्कुलिन में आएगा देर। ठीक है। न्यूट्रल में आएगा 10। फेमिनिन में दी। प्लूरल में भी दी। ओके तो मस्कुलिन में देयर, न्यूट्रल में दास, फेमिनिन में दी एंड प्लूरल में दी। ओके ट्विंकल वन द स्टेम्ड आर्टिकल। eine और लास्ट एसटी। फाइन देन ein देन eine और लास्ट ब्लैंक। The investment article has no plural. The negative article, Ajit. सर कौन सा? Negative article. काइन, Hmm. काइनन, Hmm. काइनन और ब्लैंगन। Then plural में क्या है? काइनेन, KEINE। Kind. Kind. काइना। Hmm. Then plural में प्लूरल में काइनेन, KEINE। no. Kind same. Feminine plural का same है. Kind kind. हाँ वही बोला सर, KEINE। Okay okay. Fine. फेमिनिन में मैं ई नहीं बोला। ठीक है. तो ये थी वेस्टर्न आर्टिकल, इन्वेस्टमेंट आर्टिकल एंड नेगेटिव आर्टिकल। देन यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बाइस्पीला मीन्स एग्जांपल्स एंड बाइस्पील मीन्स एग्जांपल। ठीक है। फर्स्ट है das ist dash Kuli von Peter, so that is the pen of Peter। तो इसमें आपको बेस्ट आर्टिकल कंप्लीट करना है। ओके ट्विंकल ट्राई करो। कुली जो कि मीनिंग है पेन, आर्टिकल है देयर, मीन्स मस्कुलिन। क्या आएगा बेस्ट? das ist das हरमीत अजीत हियर सर। देयर। तो दास इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो कुली है वो मस्कुलिन है ना। देयर लिखा भी हुआ है नीचे आर्टिकल। हाँ सर। ओके देन ट्विंकल ये तो आपने कर लिए। हाँ सर। दास इस्ट डैश कुली उन वेस्टर्न आर्टिकल में। दैट इज अ पेन। क्या आएगा हरमीत? ein दास इज डैश कुली नेगेटिव आर्टिकल अजीत। काइन। So that's not a pen. That's not pen.
Then das ist dash Auto von Marcos, bestimmt Artikel. So that is the car of Marcos. Hermit. Das Auto. Hmm. Then das ist dash Auto. Twinkle. Ein. Das ist des Auto. Das ist kein Auto. Okay. Then Ajit. Das ist dash Tasha von Maria. So that is the bag of Maria. Maria's bag. This is Tasha का आर्टिकल दी. okay. There's no the. मैंने इसका आंसर पहले ही बोल दिया. फिर इसका दास नहीं होगा ना. हाँ. दी. Then das ist dash Tasa. Hermit. Eine. Next, Twinkle. Das ist dash Tasha. Negative article. Keine. Das ist dash photos on Peter. ये बताएगा. एक Twinkle. सर इसमें कुछ नहीं आएगा. Das sind dash photos von Peter. These are the pictures of Peter. अच्छा ओके. हरमीत आप बता. अच्छा वो मैंने नीचे वाला देखा था. अच्छा ऊपर वाले में दिया हैगा. कि प्लूरल की बात हो रही है. फोटोज हाँ. ऐसा दिया आएगा. Then das sind dash photos. अजीत. इसमें कुछ नहीं आएगा. Okay, then das sind photos. Keine. Okay, clear examples. किस तरीके से अप्लाई करना है. Yes, sir. यस सर. पिक्चर्स क्लिक करो इसकी. Done, sir. Done, sir. Done. All done. वो कैप किस किसने याद स्टार्ट कर दी. याद करनी. Honestly speaking, एक पेज पढ़ा था सर. बस वर्ब का एक पेज. वो कैप की वर्ब का एक पेज. वो कैब कहाँ सर. Honestly speaking, झूठ की बोल. उस पेज मेरे को में टाइम नहीं लगा. आई गेस कि 8-9 होगी बस ज्यादा से ज्यादा. हाँ मेरे ख्याल 9 थी. वो कितनी वो कैप याद करी थी 2 हफ्ते में. टाइम ही नहीं लगा. ट्विंकल आपने कहा था कि याद कर रही. सर मैंने मतलब पढ़ी तो थी बट मेरे को बीच बीच में से अब याद है.
प्रॉपर सारे याद नहीं। तो मतलब कहाँ तक पहुंचे आप बीच बीच में से? लाइक ऐसे मेरे को पेज नंबर नहीं याद, चैप्टर नंबर? बट हाँ मतलब मैंने उसके कुछ पेजेस पढ़े थे 10-12 के आसपास, तो मेरे को उसमें बीच बीच में से याद है, सारे ऐसे लाइन वाइज नहीं याद। अजीत? मैं भी थोड़ा ही पढ़ा सर, वो बुक नहीं आया मेरा, बुक अभी ऑर्डर किया, आया नहीं। तो वोकैबलरी स्टार्ट कर दो, याद करना, बार बार नहीं कहूँगा मैं, ठीक है? आप इनफ मैच्योर हो, ठीक है, बच्चे नहीं हो जो मैं बात बात कहूँ। ओके? ओके सर। श्योर सर। सर टाइम नहीं लगा, मैंने ना एक दिन खोला उसके बाद थोड़ा टाइम नहीं लगा। आज मेरी छुट्टी, आज मैं पढ़ूंगा। आज मेरे को छुट्टी शिफ्ट से। बिल्कुल। ओके, सो आपने अगर याद की होंगी, देन वोकैबलरी बुक में लिखा होगा नाउन, ठीक है? मतलब नाउन की होंगी, ठीक है? उसमें सारी टाइप की वोकैबलरी दी है, वर्ड, नाउन, एडजेक्टिव्स वगैरह सब कुछ। तो नाउन दी होंगी, नाउन में साथ ही साथ में उसमें आर्टिकल लिखा होगा कि देयर है, कि दास है, कि दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जर्मन में जितने भी नाउन्स होते हैं उनका अलग अलग जेंडर होता है, ठीक है? जैसे कि मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, ठीक है? सो वही देखेंगे। अब सारे नाउन्स के आर्टिकल्स याद करना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो उसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक्स फॉर आइडेंटिफाइंग आर्टिकल, देयर, दास, ऑर्डर थी, ठीक है? तो देयर जो कि मस्कुलिन होता है, ठीक है? मस्कुलिन के लिए हम यूज करते हैं देयर को। Entorist, ismus, lingant, and तो जो आपकी नाउन है, ठीक है, अगर आपकी नाउन इन एंडिंग से ऐड हो रही है, तो ये एंडिंग्स मैंने लिखवाई हुई है, जैसे कि एंड, और, इस, ए, उस, एक, इश, एन, इशमुस, लिंग, आंट, एंड, ठीक है? अगर इससे एंड हो रही है आपकी नाउन, देन आर्टिकल आपका क्या होगा? देयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एंड, स्टूडेंट, ओ आर से आउटडोर, आउटडोर मीन्स ऑथर, देन टूरिस्ट, टूरिस्ट, कंप्यूटर, देन सर्कस, क्योनिश, क्योनिश मीन्स किंग, टूरिज्मस, टूरिज्म, गार्डन मीन्स गार्डन, ठीक है? अब यहाँ पर स्टूडेंट, ई एन टी से एंड हो रहा है, ई एन टी से, सो इसका आर्टिकल देयर। आउटडोर, ओ आर से एंड हो रहा है, तो आर्टिकल देयर। टूरिस्ट, आई एस टी से, आर्टिकल देयर। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस नाउन का क्या आर्टिकल होगा। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। मतलब ये जो एंडिंग्स होंगी, इस एंडिंग्स के साथ देर लगने का। तो आपने एंडिंग्स याद करनी है, ठीक है? ओके अजीत? यस सर। यस। क्लास? यस। Yes, ओके, देन यहाँ पर timings of the day,
Nacht means night. ठीक है, सो टाइमिंग्स इन ऑफ द डे एक्सेप्ट द नाइट. सो नाइट को छोड़ के नाइट का आर्टिकल भी है और जो बाकी के इवनिंग मॉर्निंग, ठीक है, इनका आर्टिकल दिया है. ठीक है, उसके बाद डेज ऑफ द वीक, months of the year, seasons, points of the compass. ठीक है, इनका आर्टिकल क्या रहेगा हमेशा देयर. ओके, देन names of the cars always there. जितनी भी कार्स के नेम है उनका आर्टिकल देयर रहेगा. देन मोस्ट वेदर एलिमेंट्स, directions. जैसे फॉर एग्जाम्पल they are northern. Northern means north and their southern means south. Okay, तो सर इनमें ये पॉइंट ऑन द कॉम्पस और डायरेक्शन सेम है ना? हाँ, ठीक है, और ये हम डिस्कस करेंगे, ये 5th चैप्टर में है. ठीक है, 5th नहीं सॉरी 6th डायरेक्शन. ठीक है, मैंने क्लियर हो. और जो टाइमिंग्स ऑफ द डे, डे ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, ये 5th चैप्टर में वो तब डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सीजन्स ओके कितने सर, होते ओके. हैं. क्लियर यहाँ तक? तो इस इन यस केसेस सर. में आपका पेयर यूज होगा मस्कुलिन. देन इसके बाद न्यूट्रल. न्यूट्रल का आर्टिकल होता है दास. तो यहाँ पे अगर CHEN, सेम, लाइन, सिव, मेंट, ओम, ओ, अगर इनसे एंड हो रहा है, आपकी नाउन की एंड हो, ये एंड हो रही है. ठीक है, देन आपका आर्टिकल क्या रहेगा दा. फॉर एग्जाम्पल CHEN से मेडशन. मेडशन मीन्स क्या होता है? नो आइडिया सर. गर्ल गर्ल, लड़की. बताया था. हम्म. अब मेडशन मीन्स लड़की होता है. ओके, तो ये क्या होगा मस्कुलिन, फेमिनिन एंड ट्रिकल आप मत बताना. ठीक है, मस्कुलिन, फेमिनिन और क्या कहते हैं न्यूट्रल. अजीत और हरमीत आप बताएं. गर्ल तो सर मतलब फेमिनिन के साथ आएगी. हाँ, फेमिनिन. डी लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है. जर्मन में क्या है कि जो मेडसन है उसका आर्टिकल दास है. क्या बोला? दास न्यूट्रल है मेडसन. ऐसा क्यों? ऐसा कुछ इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है इसके पीछे. है तो है. नहीं तो वैसे तो गर्ल जो है वो फेमिनिन में आती है, फ्राउ अभी जैसे हम बोल देते हैं. अभी तो मैंने आपसे तो पूछा. वहाँ अच्छा, मतलब ये याद ही रखना है कि ये जो मेंशन लिखा है ये हाँ, जो मेडसन है 10 में वो आएगा. दास में आएगी, ये आपने याद रखना है. ओके ओके, सर. देन ओ से फोटो. फोटो 10 फोटो. ठीक है, फोटो. देन मेंट, मॉन्यूमेंट.
line, thin line, museum. Thin line means small baby or little baby. Museum means museum. अब ये ओ से एंड हो रहा है तो आर्टिकल दास, MENT से एंड हो रहा है तो आर्टिकल दास, ट्रेंड लाइन आर्टिकल दास एंड म्यूजियम आर्टिकल दास। इस तरीके से आर्टिकल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। नाउन के स्टार्टिंग में अगर GE आ रहा है, ठीक है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा? दास। जैसे फॉर एग्जाम्पल Getränk, Geschäft and Gespräch. Getränk means beverages, ठीक है, आर्टिकल दास, GE से स्टार्ट। Geschäft means business or shop, दास आर्टिकल। Gespräch means conversation or discussion, बीच वाले का मीनिंग क्या है? शॉप और बिजनेस, शॉप और बिजनेस। ओके, ओके श्योर। Geschwister means siblings, ठीक है। सिबलिंग्स। तो इसमें क्या आएगा? GE से स्टार्ट हो रहा है। ये भी 10 आएगा। नो, इसमें आएगा दी। इसमें आएगा दी आएगा। इसके पीछे रीजन ये है, जैसे कि जो ये ट्रैक है, जो GE बिगनिंग नाउन, जो नाउन्स में GE स्टार्ट होता है, जैसे कि गेट्रैंक, गेशेफ्ट, गेशप्रेस एक्सेट्रा, ठीक है, काफी सारे हैं। तो ये 90% होती है, टोटल 90%। अब बचा 10%, तो 10% ये होती है जिसमें GE से स्टार्ट हो रही है नाउन, लेकिन आर्टिकल इसका दी भी हो सकता है और देयर भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स ज्यादातर जितनी भी जो GE से स्टार्ट होती है 90% उनका आर्टिकल दास होता है। ठीक है, नाउ क्लास, यहाँ पर कंफ्यूजन कोई? ठीक है सर। तो ये सर 10% जो है, हम्म, मतलब हमारे को कैसे पता लगेगा ये 10% में ये आ रहे हैं? याद करके होगा। आपने एक नाउन देखे, जैसे फॉर एग्जांपल गेटरैंक देखा, आपने दिमाग में आया गेटरैंक देख की सर ने बताया था कि जो GE से स्टार्ट होती है उसका आर्टिकल दास होता है। आपने बिना सोचे 10। समझ किया, ठीक है। आपने एक बार रीड किया, आप वोकैबुलरी लिस्ट में याद करें, आपने एक बार रीड किया कि हाँ इसका आर्टिकल दास है, चलो ठीक है ये दास, आपको हमेशा याद रहा। देन आपने गेस्टर देखा वोकैब बुक में, देन आपको GE से स्टार्ट हो रही है ना, देन ऑफ कोर्स इसका आर्टिकल क्या होगा? दास होगा। लेकिन दी या फिर देयर निकला, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ने तो बताया था कि सबका दी दास ही होगा जो GE से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 10% है उसमें आपको दी भी हो सकता है और देयर भी। तो ये आप याद करोगे तो हाँ, एक बार रीड करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका ये आर्टिकल है। ट्रिक है ये मतलब ये नहीं कि हमेशा यही रहेगी, लेकिन अगर देखें पूरा वो निकालें, 90% GE से जो स्टार्ट होती है उनका आर्टिकल दास होता है। अगर बाई चांस आप कहीं पर फंस गए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आर्टिकल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेशिफ्ट, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ इसका दास तुक्का लगा दो, तो 90% चांसेस है सही निकलेगा। ठीक है, इस तरीके। नाउ क्लियर?
यस सर। अजीत, यस सर, यस। समझ में आया ना? यस सर। वर्क यूज एज नाउन, हैव, सेम स्पेल। ओके हमीद, इस लाइन का मतलब क्या? जो वर्ब है वो मतलब सेम यूज होती है जब उनके स्पेलिंग सेम होते हैं। वर्ब जो है वो नाउन की तरह यूज हो जाती है उसमें। तुम बात किए। फॉर एग्जाम्पल, राउखन फ्रेश। Okay, so Raukhan means to smoke. Expression means speak. Listen means टू read. रीड। तो ये राउखन एक्सप्रेशन लेजन क्या है? ये नाउन या ये फिर वर्ब्स। वर्ब्स? ठीक है। ओके सो ये वर्ब्स हैं। अब ये वर्ब्स आपकी नाउन्स में यूज हो रही हैं और स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका आर्टिकल दास है। दास राउखन, दास एक्सप्रेशन, दास लेजन। मीनिंग सेम रहेगी, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? इस पॉइंट में कोई डाउट? तो मतलब सर ये जो वर्ब है ये 2 बार ही आएगा। मान लो यही आज राउखन वाली बात आ रही तो वहां पे 10 लगेगा। आप ये कहना चाह रहे हो रूल्स में? मतलब दो बार कैसे आएगा? मतलब मैं समझा नहीं, आप कहना नहीं, क्या आपने ये बोला कि ये दो मतलब वर्ब है वो अगर यूज एज अ नाउन, वर्ब नाउन की तरह तब यूज होएगा जब उनकी स्पेलिंग सेम होंगे। इसका कोई एग्जांपल देना एक बारी। एग्जाम्पल्स दिए मतलब ना? 2 बार आएगा। दोनों मैं समझा, 2 बार ही आएगा सेंटेंस में। एक मैं समझा। जैसे एक्सप्रेशन की वर्ब है जो कि स्पीक है, मीनिंग, ठीक है। वर्ब का कोई आर्टिकल, हम्म। ठीक है, वर्ब का कोई भी आर्टिकल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल दास है और ये नाउन में चेंज हो हम्म। गई। वर्ब नहीं रही, अब ये नाउन में चेंज हो गई। अगर जो आपकी वर्ब नाउन में चेंज हो रही है और स्पेलिंग भी चेंज नहीं हो रही, देन आर्टिकल इसका दास होगा। बिना सोचे समझे दास लिख दो। ओके। अब समझ में आ गया? यस यस। अभी और कुछ डाउट? नहीं सर। थोड़ा बहुत और? नहीं अजीत, सर। सर। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? हाँ सर, वो स्पेलिंग चेंज नहीं होने का, वो उसमें दास लिखने का, ये हाँ बिल्कुल बराबर, मतलब कुछ। बराबर। Okay, then most metals elements, for example, das gold, das silver, ठीक है। तो सिल्वर मीन सिल्वर। तो मेटल एलिमेंट्स, ज्यादातर मेटल एलिमेंट्स का यहाँ पे मोस्ट लिखा है मैंने, सारे नहीं लिखा, मोस्ट, ठीक है। तो ज्यादातर मेटल्स का आर्टिकल दास होता है, जैसे कि प्लैटिनम, ठीक है, लोहा, ये सब, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? देन इसके बाद ये पूछो। ट्विंकल, ट्विंकल कुछ पूछना है? नहीं सर। देन दी, फेमिनिन के लिए हम यूज करते हैं दी आर्टिकल।
तो ये एंड हो ई से, ई आई, आई ई, क्राफ्ट, हाइट, काइट, हेंस, hans, टेट, yawn, your, oak, hick, hickshaw. अगर आपकी नाउन इन एंडिंग से एंड हो रही है, ठीक है, देन आपका आर्टिकल दी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ई से लैम्प, विच मीन्स लैम्प. पोलिसाई means police. Industry, industry. Front shaft. Front shaft means twinkle. फ्रेंडशिप. Hmm. Freiheit means friendship. Oh, sorry. Freiheit means freedom. Kite means Möglichkeit. For example, Möglichkeit. Möglichkeit means hermit. Möglichkeit means. आज ही काय क्लास नाही में आणू. ये वाली याद कर ली और बाकी याद नहीं करी. हाँ? कायला सर याद नहीं. थोड़ा बहुत है इसलिए याद है क्योंकि ना मैं रोज बोलता हूँ थोड़ी बहुत तो. ये याद नहीं हो रही. और ये काम पे तो मतलब आपको पता ही है, फिर वहां पे चलता रहता है थोड़ा बहुत. okay, so Möglichkeit means possibility. Conference, tolerance, universitate. मतलब कुछ पूछे कोई काय ना हालो, है ना. जस्ट किडिंग सर. रिएक्शन, रिएक्शन, कल्चर, कल्चर. ओके, देन यूएनजी से आनो ही लिखते, हमें भी कोई आइडिया नहीं है. देन सही बात. रैशनो. एस्नो. तो इनका आर्टिकल जैसे ई से एंड हो रहा है, सो दी, पुलिसाई दी, इंडस्ट्री दी, सबका आर्टिकल दी होगा, क्यों? क्योंकि ये डी की एंडिंग से एंड हो रहा है. रैशनो मीन्स बिल, ठीक है. बिल्कुल. आनो मीन्स आइडिया. ओके, देन जितने भी फ्रूट्स हैं उनका आर्टिकल डी है, सिवाय दो फल को छोड़कर, जिसमें से देयर एप्पल एंड देयर फ्रेश, ठीक है. देन इन दो फ्रूट्स को छोड़कर बाकी सब फ्रूट्स का आर्टिकल डी. उसके बाद मोस्ट जर्मन रिवर. तो मोस्ट जर्मन रिवर्स का आर्टिकल डी है, एक्सेप्ट देयर राइन और देयर मेन. But that become noun with spelling change.
Verbs that become noun with a spelling change. For example, helpful. Helpful means to help. Okay. अब ये चेंज हो गई आपकी। अगर यही हेल्पफुल अब अगर आप नाउन की तरह यूज कर रहे हो, नाउन में यूज करोगे, देन हेल्प मीनिंग हेल्प। तो यहाँ पे हेल्पफुल से हेल्पा हुआ, स्पेलिंग चेंज हुई, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हुई है तो आर्टिकल दिया है। देन आर्बाइटर। आर्बाइटर मीन्स टू वर्क। आर्बाइट स्पेलिंग चेंज हुई इसमें, यस और नो? यस, ई एन हट गया, स्पेलिंग चेंज हुई तो आर्टिकल दी। तो जिस भी नाउन की स्पेलिंग चेंज हो रही है, ठीक है, सॉरी जिस भी वर्ब की स्पेलिंग चेंज हो रही है नाउन में, देन उसका आर्टिकल दी। ये थर्ड वाला पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, अदर्स? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये ट्रैक आपकी, ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। जो हमने ये ट्रैक अभी डिस्कस करी, ठीक है, वो आपकी 50% अप्लाई होती है, मतलब 50% काम करेगी, ठीक है। ओके, 100% काम नहीं करने वाली, 50%। अब इसके बाद 50% और बचा। अब यहाँ पे आपका इंग्लिश हेल्प करेगी, ठीक है, इंग्लिश हेल्प करेगी यहाँ पर 40%। किस तरीके से? जैसे कि फादर, फादर क्या है इंग्लिश में? फादर। मस्कुलिन। masculine there. Okay. Then Katsam means cat. कैट। Cat क्या है? फेमिनिन। Feminine. जर्मन में भी feminine. For example, heft. Heft notebook. इंग्लिश में notebook क्या है? नो। न्यूट्रल। 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 ठीक है, सो जर्मन में भी न्यूट्रल। इसी तरीके से जैसे ब्यूशर, बुक्स। बुक्स क्या है जर्मन में? न्यूट्रल। प्लूरल, ये तो वो अलग टॉपिक है। फेमिनिन। प्लूरल। फेमिनिन। ओके, बुश। हाउस क्या है? न्यूट्रल। इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हेल्प करती है आपकी 40%, ठीक है। 90% हो गया, अब बचा 10%। 10% मस्कुलर भी है, तो 10% आपने याद करनी पड़ेंगी। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे मैं आपको शौक देना चाहूंगा, ठीक है, अपना दिल थाम के बैठना। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर बताया था कि जैसे ले लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल ई आई, ठीक है, यहाँ पे था ई आई, आपने रट लिया कि ई आई एंडिंग है फेमिनिन की। अब यहाँ पर ई आई से एंडिंग हो रही है नाउन ई आई से, ठीक है। आर्टिकल आपने पढ़ा कि दी होगा हमेशा, लेकिन निकल दी नहीं निकला, निकल आया फॉर एग्जांपल देयर या फिर दास, कुछ भी। आप कहोगे कि अब ये क्या हो गया है? ये हमने तो सीखा था कि जो आई ई से नाउन एंड होगी उसका आर्टिकल हमेशा दी होगा। नो,
उसका आर्टिकल दिया और दास भी हो सकता है, ये 10% में आता है। क्लियर? यस सर। कॉपी कलम लेके बैठा था। हमीद, एक बार रिपीट करना। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया पीछे की जो एंडिंग्स लिखवाई थी, ठीक है, ध्यान से सुनो, एंडिंग्स लिखवाई थी, उसमें मैंने बताया कि कोई भी एंडिंग, ई आई ही नहीं, कोई भी एंडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ई, जो यहाँ पे आपने देखा कि जो ई से एंड हो रहा है उसका आर्टिकल दी है, ठीक है, आपने देखा। तो यहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जो ई से एंड हो रही हैं, ठीक है, नाउन ई से एंड हो रहे हैं और उसका आर्टिकल दी आर्टिकल ना होकर उसका आर्टिकल देयर है या फिर दास है, कुछ भी, ठीक है, देयर भी हो सकता है, उसका दास भी हो सकता है। तो वो आपको आपकी 10% में आती है, और जैसे कि लिखा हुआ है कि उसके लिए आपने याद करनी पड़ेगी। जो सेम जीई के साथ था, है ना, वही सेम यहाँ पर। ठीक, समझ गए। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रिक बर्बाद है, ये ट्रिक 50% अप्लाई होती है, मतलब 50% आपके लिए काम करेगी, ठीक है, बाकी 40% इंग्लिश काम करेगी, 10% आपने याद करना है, ठीक है। ओके, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो अभी। डन। डन सर। सर उसका नहीं दिया। ओके सर। ओके सर। डन सर। ओके, सर होमवर्क का थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, वेट वेट, एक सेकंड। ओके सर, नेक्स्ट। ओके सर। ओके सर। ओके सर।
ओके, सो आज के लिए इतना ही।